ایک پہلوان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ گردش زمانہ سے سخت پریشان ہو گیا تھا۔ خرچ زیادہ اور آمدنی کم تھی۔ مفلسی اور کلاشی کے ہاتھوں عاجز ہو کر اپنے باپ کے پاس گیا اور شکایت زمانہ کرتے ہوئے اس سے سفر پر جانے کی اجازت چاہی تاکہ اپنی قوت بازو سے کام لے کر گوہر مقصود حاصل کر سکے، یعنی اپنی تنگ دستی کو آسودہ حالی میں بدل سکے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، یہ فضول خیال سر سے نکال دے اور سلامتی کے لیے قناعت کر کے گھر میں بیٹھ جا، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ دولت کوشش سے نہیں ملتی۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، سفر کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً تفریح طبع، مختلف ملکوں کی سیر، عجیب و غریب چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مرتبہ اور ادب کا حاصل کرنا، منافع کمانے اور دولت میں اضافہ کرنے کے ذرائع میسر آنا، دوستوں کی ملاقات، قسم قسم کے لوگوں سے واقفیت اور زمانے کے نشیب و فراز کا تجربہ وغیرہ۔ باپ نے کہا کہ جانب ادھر، سفر کے فوائد جیسا کہ تو نے بیان کیے بے شمار ہیں، لیکن یہ صرف 5 قسم کے لوگ ہی یقینی طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اول، وہ سوداگر جس کو خدا نے دولت، حشمت، غلام، کنیزیں اور مستعد خدام دے رکھے ہوں، ہر روز ایک نئے شہر میں جاتا ہے اور رات ایک نئی جگہ مقیم ہوتا ہے اور ہر وقت دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ عالم کے اپنے کلام شیریں، قوت فصاحت اور ماریہ بلاغت کے ساتھ جہاں کہیں جاتا ہے لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تعظیم کرتے ہیں۔ تیسرا، وہ خوبرو کہ صاحب دل لوگ اس سے ملنے کی خواہش کریں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا حسن و جمال بہت سے زر و مال سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں خوبصورت چہرہ زخمی دلوں کا مرہم ہے اور بند دروازوں کی کنجی ہے۔ بلا شبہ اس کی صحبت کو لوگ سب جگہ غنیمت سمجھتے ہیں۔ چوتھا، وہ خوش آواز گویہ ہے کہ اپنے داؤدی گلے سے بہتے پانی کو روک دیتا ہے اور پرندوں کو اڑنے سے باز رکھتا ہے۔ اپنی اس خداداد فضیلت سے وہ مشاکوں کے دل شکار کرتا ہے اور باشعور لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس کی خدمت بجا لاتے ہیں۔ پانچواں، وہ صاحب ہنر ہے جو اپنی قوت بازو سے روزی حاصل کرتا ہے اور روٹی کے ایک لقمہ کے لیے اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرتا۔ اے بیٹے، یہ صفات جو میں نے بیان کی ہیں سفر میں دل جمی اور حسن گزاران کا باعث بنتی ہیں۔ جو شخص ان صفات سے محروم ہے وہ محض خوش فہمی میں مبتلا ہو کر سفر کرتا ہے اور کوئی دوسرا اس کا نام و نشان بھی نہیں سنتا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، میں داناؤں کے قول کی مخالفت کیسے کروں جو کہہ گئے ہیں کہ رزق اگر قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو ضروری ہے، اور مصیبت بھی اگرچہ قسمت میں لکھی ہوتی ہے لیکن اس کو جان بوجھ کر دعوت دینے سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ میری کیفیت یہ ہے کہ مست ہاتھی پر حملہ کر سکتا ہوں اور غضبناک شیر سے پنجہ آزمائی کر سکتا ہوں۔ بس اے پدر بزرگوار، بہتر یہی ہے کہ میں سفر کروں، کیونکہ مفلسی کے مصائب جھیلنا میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر باپ سے دعا کی درخواست کی اور چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک تند و تیز دریا کے کنارے پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ کچھ آدمی سامان سفر باندھے ایک کشتی پر بیٹھے ہیں۔ ملاح نے ان سے دریا عبور کرانے کی اجرت پہلے ہی لے لی تھی۔ اس نوجوان کے پلے پیسہ تو تھا نہیں۔ ملاح کی خوشامد کرنے لگا کہ وہ اسے بغیر اجرت لیے کشتی میں بٹھا لے۔ ملاح نے اس کی خوشامد کا جواب خندہ استہزاء سے دیا اور کہا کہ روپے کے بدلے روپے، اگر آپ مجھے فائدہ پہنچائیں گے تو میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ 10 آدمیوں کے زور کی بجائے ایک آدمی کا کرایہ نکال کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی اس کی خوشامد اور رونے پیٹنے پر
मुतलकुल रहम न खाया और कश्ती चल पड़ी। नौजवान को सख्त गुस्सा आया और उसने मलाह से बदला लेने की ठानी। पुकार कर कहा कि अगर मेरे जिस्म के कपड़े किराया के औस तू कबूल कर ले तो पेश कर सकता हूँ। मलाह लालच में आकर कश्ती को वापस किनारे पर ले आया। नौजवान ने उसको कश्ती से खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। मलाह का दोस्त भी उसकी मदद के लिए कश्ती से बाहर आया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। नाचार उन्होंने मसलहत इसी में देखी कि इस शहजोर नौजवान से सुलह कर लें और इसे बिला उजरत दरिया के पार ले जाएं। चुनाचा उसके पांवों पर गिर पड़े और मिन्नत समाजत करके कश्ती में बिठा लिया। दरिया में एक जगह यूनान की किसी शिकस्ता इमारत का सतून खड़ा था। कश्ती उसके करीब पहुंची तो मलाह ने कहा, कश्ती में एक खराबी पैदा हो गई है। तुम में से कोई ऐसा आदमी जो बहुत ताकतवर हो इस सतून पर चढ़ जाए और कश्ती की रस्सी को पकड़कर उसको रोके रखे ताकि हम इस दौरान उसकी मुरम्मत कर लें। पहलवान को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने आरज़ादा दिल दुश्मन का ख्याल न किया और दानाओं के इस कौल को फरामोश कर दिया कि जिसको तूने एक दिली रंज पहुंचाया, उसके बाद अगर तू उसको 100 आराम पहुंचाए तो इस एक रंजे से बेखौफ मत रहे, क्योंकि तीर जख्म से बाहर निकल जाता है और उसका दर्द दिल बाकी रह जाता है। चुनाचा वो कश्ती की रस्सी अपने बाजू से लपेटकर उस सतून पर चढ़ गया। मलाह ने रस्सी उसके हाथ से छुड़ा ली और कश्ती चला दी, यानी उसने रस्सी को काट दिया। पहलवान बेचारा हैरान रह गया। 2 दिन सख्त मुसीबत उठाई, तीसरे दिन नींद ने गलबा किया और उसे पानी में गिरा दिया। एक रात और दिन हाथ पांव मारने के बाद वो किनारे पर पहुंचा। जिंदगी की कुछ रमक बाकी थी। दरख्तों के पत्ते और घास तोड़कर खाने लगा, यहां तक कि जिसमें कुछ कुव्वत आई और वहां से आगे रवाना हुआ। रास्ते में शदीद प्यास महसूस हुई। इत्तेफाक से एक कुएं पर पहुंचा जिसके गिर्द कुछ लोग जमा थे। वो लोग 1 पैसा देकर थोड़ा सा पानी पीते थे। नौजवान के पास पैसा तो था नहीं। अपनी बेकसी और बेमांगी का इजहार करके पानी तलब किया, लेकिन किसी ने उस पर रहम न खाया। उसने तंग आकर पानी फरोख्त करने वालों में से एक को जदोकोब किया। ये देखकर बहुत से आदमी उसको लिपट गए और खूब पीटा, यहां तक कि जख्मी हो गया। नाचार एक काफले के पीछे हो गया। रात को काफला एक ऐसे मकाम पर नौजवान ने देखा कि काफले वाले सारे लोग खौफ के मारे कांप रहे हैं और मौत को सामने देख रहे हैं। उसने कहा, फिक्र न करो, मैं तन्हा 50 आदमियों का मुकाबला कर सकता हूं। ये सुनकर अहले काफला की जान में जान आई और उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने इसको खूब खिलाया पिलाया। इसके कुल हो अल्लाह पढ़ते हुए मैदे ने भूख और प्यास से निजात पाई तो लंबी तान कर सो रहा। उन लोगों में एक जहांदीदा बूढ़ा भी था। उसने कहा, ऐ मेरे साथियों, मुझे चोरों से इतना खतरा नहीं जितना तुम्हारे रहबर से। उसने एक वाकया सुनाया कि एक गरीब के पास थोड़े से दिरहम जमा हो गए थे। उसे चोरों के डर से घर में अकेले नींद ना आती थी। अपने दोस्तों में से एक को अपने घर बुला लिया ताकि रात मिलकर गुजारें। 1, 1 और 2, 11। चंद रातों में उस दोस्त को इस गरीब की रकम का पता चल गया और एक दिन वो इन्हें लेकर 9, 2, 11 हो गया। लोगों ने सुबह उस गरीब को रोते पीटते देखा तो पूछा कि शायद तेरे दिरहम चोर ले गए। कहने लगा, नहीं, खुदा की कसम, मेरा रहबर यानी मेरा दोस्त ले गया। तुम क्या जानो कि ये पहलवान भी इन्हीं चोरों में से हो जो मकरो फरेब से हम में आ धमका है ताकि मौका पाकर अपने दूसरे साथियों को खबर कर दे। मेरा मशवरा ये है कि इसे यहीं सोता छोड़ दें और हम चलते बने। अहले काफला को मशवरा पसंद आया और वो सामान बांधकर वहां से चल दिए। जब काफी दिन चढ़ गया तो पहलवान बेदार हुआ। इर्द गिर्द देखा तो हू का आलम था और काफले का कहीं नामो निशान भी ना था। सर पीट कर रह गया। बेचारा इधर उधर बहुत घूमा, लेकिन काफले का पता न चला।
आखिर भूख प्यास से निढाल होकर एक जगह गिर पड़ा और मौत का इंतजार करने लगा। उस वक्त उसकी जुबान पर था, मुसाफिरों पर वही शख्स सख्ती करता है जिसने कभी मुसाफरत ना देखी हो, यानी गरीबुल वतनी का मजा ना चखा हो। इत्तेफाक से एक शहजादा जो शिकार खेलते हुए अपने साथियों से जुदा हो गया था उधर आ निकला। उसने खस्ता हाल पहलवान को ये शेर पढ़ते सुना और उसकी पाकीज़ा सूरत देखी तो ठिठक कर उसके सिरहाने खड़ा हो गया और परेशान हाली का सबब पूछा। नौजवान ने जो कुछ उस पर बीती थी कह सुनाई। शहजादे को उसकी तबाह हाली पर रहम आ गया और उसने उसे एक खिल्लत और इनाम से नवाजा। फिर एक भरोसा का आदमी उसके साथ कर दिया, यहां तक कि वो अपने शहर पहुंच गया। बाप उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसके जिंदा सलामत वापस आ जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। पहलवान ने रात को जो उस पर बीती थी, कश्ती के हालात, मलाह का जुल्म, कुएं पर देहातियों की ज्यादती और काफले वालों की बेवफाई, गर्ज सब के तमाम हालात बाप को सुनाए। बाप ने कहा, ऐ बेटे, क्या मैंने तुझे चलते वक्त नहीं कहा था कि मुफलिसों के दिलेरी के हाथ बंधे होते हैं और उनकी शुजात का पंजा टूटा होता है। लड़के ने कहा, अब्बा जान, यकीनन जब तक आप तकलीफ नहीं उठाएंगे खजाना नहीं पाएंगे। जब तक जान को खतरे में नहीं डालेंगे दुश्मन पर फतह हासिल नहीं करेंगे। जब तक दाना नहीं बोएंगे खुरमन नहीं उठाएंगे। आपने देखा नहीं कि थोड़ी सी तकलीफ उठाने के बाद मुझे किस कदर राहत नसीब हुई है और एक डंग खाकर शहद का किस कदर जखीरा मैं अपने साथ लाया हूं। बाप ने बेटे से कहा कि इस मर्तबा आसमान ने तेरी मदद की और इकबाल ने रहबरी की कि एक दौलतमंद तेरे पास आ गया और इनाम व अकराम से तुझे नवाजा। लेकिन ऐसा इत्तेफाक शाज़ो नादिर होता है और इत्तेफाकी बातों पर तकिया नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि फारिस के बादशाह के पास एक अंगूठी थी जिसमें एक नगीना जुड़ा हुआ था। एक मर्तबा बादशाह चंद मसैबों के साथ शिराज की ईदगाह में सैर करने गया। वहां जाकर हुक्म दिया कि अंगूठी को मरहूम शाह अज़दौलान के मकबरे के गुंबद पर कैम किया जाए और लोग इस पर तीर अंदाजी करें। जिस शख्स का तीर अंगूठी के हल्के से गुजर जाएगा अंगूठी उसको दे दी जाएगी। उस वक्त बादशाह के 400 मेहर तीर अंदाज थे। इन सब ने अंगूठी पर तीर चलाए लेकिन सब का निशाना खता हुआ। एक छोटा सा बच्चा एक नवाही मकान की छत पर तीर अंदाजी का खेल खेल रहा था। इत्तेफाक से उसका तीर अंगूठी के हल्के से गुजर गया। बादशाह ने उस बच्चे को खिल्लत और इनाम दिया और हिस्बे वादा अंगूठी भी उसे दे दी। उस बच्चे ने इनाम लेकर तीरों कमान जला दिए। लोगों ने कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? बोला, इसलिए कि मेरा भरम बना रहे। कभी ऐसा भी होता है कि रोशन दिमाग दाना से तदबीर नहीं होती और कभी ऐसा होता है कि नादान बच्चा गलती से निशाना पर तीर